Yeah, so we were here. Now, in this particular thing, just a second. Yeah, so in this descending tracks discussion, you can remember all the tracks at once with this sort of table. I'm talking about descending tracks, pyramidal tract, anterior and lateral, extra pyramidal tracts. You have this. This is what I'm going to cover today, MLF. Then we have the vestibulospinal, reticulospinal. There are two parts: tectospinal, rubrospinal, oleospinal. These tracks are there. So usually the question is asked as a short note, maybe of 5 marks, extra pyramidal tracks, right? So you can refer to the previous year's question papers, and you have to write the main things, right? Extra pyramidal tracks is a very big, good enough topic, very bulky topic. So you can extract the main points and just write that. And because all the things in the extra pyramidal tracks, it's very difficult to remember point to point, like on what part the medial reticulospinal tractor like what it what its actions are, what the actions of vestibulospinal tract is. But you can have your own methods to remember. So just refer to the previous year's question paper, what sort of questions have been asked pertaining to this topic, and you can then uh, prepare accordingly. But out of these two topics, pyramidal tracts is more important and it is often asked compared to extra pyramidal tracts. I don't know, I have not seen like any question wherein an individual particular extra pyramidal tract is asked. Let's say write a short note on vestibulospinal or a reticulospinal tract or a rubrospinal tract, because these questions are more of PG related, postgraduate related. Nevertheless, let's continue. So this is all the tracks at a glance, right? If you are running short of time, an extra pyramidal short question, short note has been asked. Just write this box, this particular thing. आप इतना लिख लोगे तो 5 में से 3 मार्क्स तो guaranteed है, right? Extra pyramidal tracks. If you are not able to write all the things, just write this thing. Definitely you will get 3 marks. That's my promise. Like if you are running short of time, and provided you have answered the previous questions properly. Fine. Now, there is one more thing which I want to explain you, and that is, uh, yeah. So that is related to uh, this thing, which is the concept of the medial motor system and the lateral motor system. So I'll just use the laser pointer. Usually, a question is also asked as uh, like what is the medial motor system and what is the lateral motor system. So when such a question has been asked, right, medial motor system, lateral motor system, you need to understand what it means. So uh, medial motor system, it implies or it refers to all those tracts which are present in the midline of the spinal cord or close to midline. So that will include the uh, ventromedial funiculus of the spinal cord. वेंट्रोमीडियल फ्यूनिकुलस फ्यूनिकुलस आपको पता है, मैंने बताया था कि वाइट मैटर जो वो उस फ्यूनिकुलस में होता है. सो वेंट्रोमीडियल फ्यूनिकुलस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, whatever tracks lie in those part, that is referred to as, whatever descending tracks lie in that part, that is referred to as medial motor descending system. मीडियल मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड के मिड लाइन या फिर पैरा मिड लाइन एरिया में लाई करता है. और लेटरल मोटर डिसेंडिंग सिस्टम मतलब कि जो लेटरल फ्यूनिकुलस में लाई करते हैं डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, उनके लिए ये वर्ड यूज होता है, लेटरल मोटर डिसेंडिंग सिस्टम. नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू like question. Just answer me.
those tracts, right, that lie in uh, ventromedial funiculus. What muscles do they supply? Simple question. Okay, axial muscles. Would you like to add anything to that, Jay? Axial, yes, that's good. Axial muscles. Axial के उपरांत, नो नॉट हेड एंड नेक. यस एक्चुअली नेक आ जाता है, वो क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई के रिलेटेड आएगा. वी आर टॉकिंग अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. हेड एंड नेक वुड बी सप्लाइड बाय द क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, मोटर न्यूक्लियाई. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पाइनल कॉर्ड. वेंट्रोमीडियल फ्यूनिकुलस में जो भी ट्रैक्स लाई करते हैं वो कौन से मसल्स को सप्लाई करते हैं? You said axial muscles, that is right. Apart from that, you would like to add something more. Anyone? Axial muscles के बाद क्या आता है? Like limb का कौन सा हिस्सा आता है जो? Yes, skeletal muscles. That's you're right. Skeletal muscle ही है. Axial muscles में सब कुछ आ जाता है. बैक भी आ जाता है और like upper back, lower back भी आ जाता है. Abdomen मत use करना word because you can talk about upper back and lower back. Appendicular skeleton में proximal muscles. I was looking for proximal muscles. Proximal limb muscles. Yes. अंजलि you are right. Proximal limb muscles. So वो एक्सियल जो वेंट्रोमीडियल के थोड़े लेटरली हिस्सा होगा वो proximal limb muscles. Like जैसे आप मिड लाइन से लेटरली चले जाते हो तो पहले एक्सियल मसल्स आते हैं और उसके बाद प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स आते हैं और फिर बाद में डिस्टल एक्सट्रीमिटी पे. तो पूरा हमारे जो प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स है, सो व्हेन आई टॉक अबाउट प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स इन अपर लिम्ब, दैट वुड बी like the deltoid and the all the muscles around the shoulder girdle. I don't remember the name. So वो shoulder girdle के आसपास के जितने भी मसल्स है वो proximal limb muscles के अंदर इंक्लूड होते हैं और वो भी उसका भी कंट्रोल like kind of is controlled by the medial motor system to some extent so as to maintain the posture. So and what tracks? Okay, the next question is what tracks will supply? Okay, so consider that these are kind of MCQs only which I am asking. What tracks lie in ventromedial funiculus? Descending tracks, हाँ कौन से motor tracks lie करते हैं? Anyone? What tracks lie in the ventromedial funiculus? Just try to recollect. I'm talking about this portion. वेंट्रोमीडियल फ्यूनिकुलस ये है, कौन से ट्रैक लाई करते हैं? मैंने डायग्राम में दिखा दिया आपको. से ventral corticospinal, which is the anterior corticospinal, tectospinal, pontine reticulospinal और थोड़े बहुत ये ट्रैक, ये थोड़ा okay, you can forget this, but some extent this वाला this area, entire area, right? So you can include this as well, reticulospinal as well. Actually in these books they are including ventromedial, मतलब ये पूरा हिस्सा इंक्लूड हो जाता है. And lateral funiculus will be this. I will explain you what it means. Vestibulospinal, okay, fine. So now just carefully understand. This is lateral corticospinal tract where my cursor is moving, and this is rubrospinal tract. ये दोनों lateral white funiculus में एक साथ है, जबकि ये बाकी के सभी ट्रैक्स वेस्टिबुलोस्पाइनल, रेटिकुलोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल और ओलाइवोस्पाइनल वगैरह जो भी छोटे छोटे ट्रैक्स है, दे आर ऑल हियर. सो इन दोनों एक पूरा ग्रुप बन जाता है. दिस इज वन ग्रुप एंड दिस इज अनदर ग्रुप. सो इनके रिलेशन में ये मीडियल है और इनके कंटेक्स्ट में आना संदर्भમાં આ લેટરલ છે और इनके कंटेक्स्ट में ये मीडियल है. So the concept is medial
system or medial motor descending system and lateral motor descending system. So the concept, I hope you are able to follow this. ये पूरा lateral funiculus में है तो इसको lateral motor descending system बोलते हैं और इसको medial motor descending system. अभी ऐसा nomenclature बनाने की ज़रूरत क्या है? So what is the idea behind like making this nomenclature? આવું નામકરણ કરવા પાછળ કારણ શું છે તો એ આપણે જોઈએ. See, you have to understand that all these tracts, यहाँ पे मीडियल मोटर सिस्टम में सभी एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स आ जाते हैं एक्सेप्ट रूब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट, और एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल भी इसमें इंक्लूड हो जाता है. एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल भी ये पूरे ग्रुप में इंक्लूड होता है. सो एंटीरियर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट एंड ऑल द एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स एक्सेप्ट रूब्रोस्पाइनल. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दैट ये जितने भी ट्रैक्ट्स है वो हमारे एक्सियल मसल्स के टोन और पोस्चर को कंट्रोल करते हैं. एक्सियल मसल्स के टोन और पोस्चर को ये प्राइमरीली कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, ताकि वी कैन डू द बैकग्राउंड, लाइक वी कैन डू द एक्चुअल मोटर एक्टिविटी लाइक राइटिंग और लाइक प्लेइंग टेनिस और एनी मोटर एक्टिविटी रिक्वायर्ड्स अ बैकग्राउंड पोस्चरल मेंटेनेंस. तो ये सभी जो ट्रैक्ट्स है जो मीडियल मोटर सिस्टम में है वो हमारे एक्सियल मसल्स और प्रॉक्सिमल लिम्ब मसल्स को, गर्डल मसल्स को वो कंट्रोल करते हैं, ताकि उनको पोस्चरली वो कॉन्ट्रैक्ट करके वो मेंटेन कर सकते हैं एक रिजिड फ्रेमवर्क. जबकि लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है दैट इज गोइंग टू बेसिकली कंट्रोल कौन से ट्रैक्ट्स है इसमें. प्राइमरीली मेन लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट विच इज द मेन बल्क, राइट. लैटरल कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट में 1 मिलियन फाइबर्स में से 80% फाइबर्स आर इन द लैटरल CST. और रूब्रोस्पाइनल हमारे अंदर लाइक इन दी ह्यूमंस इट इज नॉट सो सिग्निफिकेंट बिकॉज हमारे पास ये वेल डेवलप्ड लैटरल CST है. बट रूब्रोस्पाइनल इज सेम एज कॉर्टिकोस्पाइनल इन लोअर एनिमल्स लाइक कैट्स, डॉग्स एंड दोज एनिमल्स. सो उनके पास हमारे जैसा लैटरल CST नहीं है इन दोज लोअर एनिमल्स. तो ये लैटरल मोटर सिस्टम है वो जो डिस्टल एक्सट्रीमिटी के मसल्स है जो फाइन मूवमेंट्स करने के लिए हेल्प करते हैं, ऑल दी मसल्स ऑफ हैंड एंड द फोर आर्म, राइट, एंड टू सम एक्सटेंट दी आर्म. सो वो वाले सभी मसल्स को कंट्रोल ये करेंगी, वो लैटरल मोटर डिसेंडिंग सिस्टम में इंक्लूड होता है. तो ये एक स्लाइड से आपको बहुत कुछ पता चल जाता है कि दिस इज मीडियल मोटर सिस्टम, दिस इज लैटरल मोटर सिस्टम. तो जस्ट यू हैव टू remember this thing, what is the medial motor descending system and what is the lateral motor descending system. So I hope I have made myself clear regarding this, because a lot of Viva questions are asked from this particular topic, what is medial motor system. तो आपको सभी ट्रैक्स पता होंगे, लेकिन यदि आपको ये नहीं पता है कि what this term means medial motor system, then you might not be able to answer that. सो सिमिलरली लैटरल मोटर डिसेंडिंग सिस्टम भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें कौन सी ट्रैक्स इंक्लूड होती है और वो क्या करती है. सो आई होप आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर. So I'm going to ask this sort of questions again and again because a lot of contextual doubts may arise from this particular point. So, okay, great going. So, okay, fine. Let's move. Now, कहाँ पे था मैं? So, the tracks include C, मीडियल मोटर सिस्टम के अंदर वेंट्रल या एंटीरियर CST और ऑल एक्स्ट्रा पिरामिडल एक्सेप्ट रूब्रोस्पाइनल, और लेटरल मोटर के अंदर लेटरल CST और रूब्रोस्पाइनल. ये हमेशा आपको याद रखना है. दिस इज अ वेरी कॉमनली आस्क्ड वाइवा क्वेश्चन एंड एग्जामिनर्स बिलीव मी लव टू आस्क दिस, क्योंकि ये काफ़ी बुक्स में अच्छे से लिखा नहीं है कि मीडियल मोटर सिस्टम क्या है, लेटरल मोटर सिस्टम क्या है. जो भी पुरानी फिजियोलॉजी की बुक्स है जो 90s और वो उस समय की बुक्स में ये कंसेप्ट काफ़ी अच्छे से लिखा है, शायद अभी भी कुछ बुक्स में लिखा हो. एनीवेज, अभी हमें ये चीज़ डिस्कस करनी है मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस. मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस में अभी डिस्कस कर रहा हूँ. आई विल कवर ओनली 20-30%. ये MLF भी एक
वेरी ऑफन आस्क्ड शॉर्ट नोट है। 3 मार्क में या 5 मार्क में एक एमएलएफ करके एक शॉर्ट नोट आ सकती है। मे बी जैसे अगर एग्जामिनर को कुछ थोड़ा टफ पूछना हो तो एमएलएफ वो पूछ सकता है। एमएलएफ का बाकी का हिस्सा मैं कवर करूंगा स्पेशल सेंसेस का विजुअल पार्ट में। जब मैं बात करूंगा लेक्चर, तब मैं ये बताऊंगा व्हाट इट एक्चुअली इज। आई विल राइट नाउ जस्ट गिव यू सम आइडिया व्हाट दिस एमएलएफ इज। सो मीडियल नेम सजेस्ट कि वो मीडियल में है, यहाँ पे मिड लाइन के बगल में है। मीडियल लॉन्जिट्यूडनल मतलब वो वर्टिकल है, राइट। और फेसिकुलस, सो ये मीडियल लॉन्जिट्यूडनल फेसिकुलस हमारे सर्वाइकल सेगमेंट में होता है और वो ऊपर ब्रेन स्टेम में मिड ब्रेन तक रन करता है। सो एंटायर लेंथ ऑफ द मिड ब्रेन एंड द सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एक पतला सा ट्रैक्ट है जो पूरे लेंथ के अंदर रन करता है। और उसकी जो लाइक इट इज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द मीडियल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट। जो मीडियल वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक्ट है उसके साथ उसका काफ़ी रिलेशन है। सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट हैपेंस। So you see MLF extends from the midbrain downwards and the fibers कहाँ कहाँ से उसके fibers like it is a descending or you can say it interconnects lot of things। काफ़ी सारी चीज़ों को वो ये ट्रैक जो है ये इंटरकनेक्ट करता है। तो कौन सी ट्रैक को इंटरकनेक्ट, कौन सी सेंटर्स को वो इंटरकनेक्ट करता है? सबसे पहले आएगा वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई। मैंने बताया था वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई पॉन्स और मेडुला के जंक्शन पे है। अभी आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये एनेट में भी काफ़ी बार पूछा जाता है डिसेक्शन में और फिजियोलॉजी में लेस ऑफन, कि कौन सा क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई ब्रेनस्टेम के कौन से वाले हिस्से में होता है। तो मैं आपको अभी शॉर्ट फॉर्म वो बता देता हूँ। शॉर्ट फॉर्म तो नहीं है बट थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई मिड ब्रेन में है, फिर 5, 6, 7 पॉन्स में है, और 8 जो है एथ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई उसमें वो कॉक्लियर न्यूक्लियाई और वेस्टिबुलर दोनों आ जाते हैं। वो पॉन्स और मेड्यूला के जंक्शन पे है। और 9, 10, 11, 12 हमारे मेड्यूला के अंदर है। એટલે क्रमानुसार 9, 10, 11, 12 હોય છે, राइट। सो जस्ट 3, 4, 5, 6, 7 देन 8 एंड देन 9, 10, 11, 12। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं तो आप बोल दोगे कि हाइपोग्लॉसल न्यूक्लियाई मिड ब्रेन में है, यू आर गॉन लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो। सो वेस्टिबुलर, यहाँ पे हम एमएलएफ की बात कर रहे थे कि वहाँ कहाँ से ओरिजिन होता है। तो वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई कंट्रीब्यूट्स टू सम फाइबर्स ऑफ द एमएलएफ and that is why this MLF is also in close relation with the medial हाँ medial vestibulospinal tract। फिर reticular formation, then comes superior colliculus, then comes interstitial nucleus of Kagel। So there was this scientist whose name was Kagel, not like the this, but his full name was Ramon Y. Kagel। So this scientist was there। Then nucleus of posterior commission। अभी आप पूछोगे ये दोनों कहाँ पे है, तो अभी I don't bother about this। Even right now I don't know where these exactly are located, but they are somewhere located in the brainstem। यू डोंट नीड टू बॉदर राइट नाउ। आप ये चीज़ याद रखना है जिसको वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई, रेटिकुलर फॉर्मेशन, सुपीरियर कॉलिक्युलस, दिस न्यूक्लियस ऑफ कैजल एंड न्यूक्लियस ऑफ पोस्टीरियर कमीशन। तो व्हाट डज इट डू बेसिकली? सी, इट इज क्लोजली रिलेटेड। ओके, नंबर ऑफ cranial nerve nuclei। ओके, so see, third and fourth cranial nerve nuclei are located in midbrain। 5, 6, 7 are located in pons। एथ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई की जिसके दो हिस्से हैं कॉक्लियर और वेस्टिबुलर, वो लोकेटेड है पॉन्स और मेडुला के जंक्शन पे। और 9, 10, 11, 12 लोकेटेड है मेडुला में। सो नाउ दिस मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल fasciculus is closely related to थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ एंड ट्वेल्थ क्रेनियल नर्व, चीफली 3, 4, 6। और थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व क्या करती है? ये प्रैक्टिकल हुआ है या बाकी है? व्हाट डज थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ क्रेनियल नर्व डू? गाइस आंसर मी इन द चैट बॉक्स। Third, fourth, no, it's not optic. Jay, it's not optic. Optic muscle is not the right word to describe. Yes, definitely muscles, but which? What's the word you use for them? Extraocular muscles। ये पूरा बोलना, extraocular muscles, right? So
extraocular muscles. So superior rectus, inferior rectus, medial, lateral rectus, superior oblique, inferior oblique. तो ये जो भी मसल्स है उनकी हेल्प से या कॉन्जुगेट आई मूवमेंट्स, मतलब कि दोनों आईज एक साथ मूव करनी चाहिए पूरी विजुअल फील्ड में। ऐसा नहीं कि एक आंख यहाँ पे देखे और दूसरी आंख वहाँ पे देखे, राइट। सो दैट इज अबाउट द एक्स्ट्राओक्युलर मसल्स। तो ये थर्ड फोर्थ सिक्स क्रेनियल नर्व उसको, और ये 12th cranial nerve ये पूरे एमएलएफ के साथ रिलेटेड है, and some fibers of seventh nerve and to some fibers from the cochlear nuclei. But chiefly you can remember third, fourth, sixth. Now, the spinal cord becomes continuous with the anterior intersegmental tract of spinal cord. Sorry, this MLF, medial longitudinal fasciculus, becomes continuous with the anterior intersegmental tract of spinal cord. मतलब ये कहना चाह रहा है कि एमएलएफ पूरे ब्रेन स्टेम में रन करता है, और फिर क्या होगा कि नीचे फ्रॉम द मेडुला टू द स्पाइनल कॉर्ड, जब वो ट्रांजिशन आता है फ्रॉम द मेडुला टू द स्पाइनल कॉर्ड, तो यहाँ पे ये एंटीरियर वाइट फ्यूनिकुलस है, और उसको एंटीरियर कमीशर भी बोलते हैं। तो उस ये दिस इज व्हाट दिस इज डिस्क्राइबिंग इज एंटीरियर वाइट फ्यूनिकुलस का पोस्टीरियर पार्ट। सो एंटीरियर वाइट फ्यूनिकुलस के पोस्टीरियर पार्ट में यहाँ पे, राइट, ये जो एंटीरियर इंटरसेगमेंटल ट्रैक्ट है, what it says is that this particular commissure में ये रन करता है, this MLF. Then this tract is well defined only in the upper cervical segment, not even the entire length of the cervical cord. केवल अपर सर्वाइकल सेगमेंट्स में ये रन करता है, और उसके नीचे, राइट, मे बी अप टू द C3 और C2 लेवल, और C3 से C4, C5, C6, C7, C8, this tract is like more of, it becomes the medial vestibulospinal tract. So the conclusion is that basically when you want to control your muscles of neck and the this पूरे head and neck के जो see when you are moving your eyes in a visual field, आप जब भी eyes को move करते हो तो आपके neck को भी move करना है, head को भी move करना है। तो वो conjugate movements करने के लिए, let's say कि if you are going to track any object in the visual field, आप सीधे देख रहे हो, और अगर आपको राइट साइड देखना है, आपका जो विजुअल फील्ड में ऑब्जेक्ट राइट साइड मूव कर लिया, राइट। सो लेट्स से आई विल गिव यू अ गुड एग्जांपल। यू आर वाचिंग क्रिकेट, राइट, आप क्रिकेट खेल रहे हो और बैट्समैन हैज हिट द बॉल, एंड नाउ द बॉल इज मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड, राइट साइड ऑफ योर विजुअल फील्ड। तो आपको देखना है उस बॉल को, तो ऑटोमेटिकली यू आर नॉट गोइंग टू कमांड योर हेड नेक, इट इज गोइंग टू ऑटोमेटिकली मूव। So the muscles of the like this neck region, right, they are going to help you turn your neck. तो क्योंकि आईज ऑटोमेटिकली मूव करेंगी बॉल को फॉलो करते हुए, तो तुरंत थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई से वो सिग्नल्स कोरिलेट होंगे, और कोरिलेट होंगे, दे विल पास टू द मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल fasciculus and down in the cervical segments to control the neck muscles. So, see, follow this. Along with the fibers of the medial vestibulospinal tract, they make connections with the ventral horn cells. जो नेक के मसल्स के जो एंटीरियर मोटर न्यूरॉन्स है, और वो जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, तो उनके ऊपर ये इनडायरेक्टली टर्मिनेट करते हैं। कौन से एमएलएफ और मीडियल वेस्टिबुलर स्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर्स। सो व्हाट दे विल डू, important role in the pathway of ocular movements, harmonious movement of the eyes and neck in response to vestibular stimulation and auditory stimuli. So, apart from the visual stimuli, the vestibular stimulation और auditory stimuli, जैसे मान लो कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है और आपको हेड और नेक को प्रिवेंट करना है गिरने से, लाइक अलोंग विद द बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। सो आईज और नेक के मूवमेंट, लाइक इन रिस्पॉन्स टू द वॉट एवर पोस्टुरल स्टिमुलाई आर हैपनिंग वाया वेस्टिबुलर apparatus and the auditory stimuli, तो उनका हारमोनियस मूवमेंट होना चाहिए। फिर it facilitates simultaneous movement of the lip and tongue as in speech. So what will happen is that you are going to talk. So Broca's motor speech area, there is a speech area, कॉर्टेक्स के अंदर बोलने का एक एरिया है, उसको स्पीच एरिया बोलते हैं। तो वर्निकीज एरिया और ब्रोकाज एरिया सभी स्पीच में कवर होंगे। तो वो एरिया से सिग्नल्स निकलेंगे, और हाइपोग्लोसल वाया कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर से वो हाइपोग्लोसल न्यूक्लियर में वो इम्पल्सिस जाएंगे।
तो अभी टंग तो मूव करेगी, लेकिन लिप्स के लिए कोई अलग से क्रेनियल न्यूक्लियाई नहीं है। लिप्स के लिए तो हमारे पास ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल्स है। तो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस के जो मसल्स को भी मूव करना है टंग के मूवमेंट के साथ, तो वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा था कि ये फेशियल नर्व आ रही है यहाँ पे, फाइबर्स ऑफ द सेवेंथ नर्व, राइट। सो दिस इज बेसिकली अ कोऑर्डिनेशन। एमएलएफ काफ़ी सारा कोऑर्डिनेट करता है। सो यहाँ पे देख लो, दिस इज द थर्ड न्यूक्लियाई, थर्ड क्रेनियल न्यूक्लियाई, और यहाँ पे फोर्थ है, राइट। सो दिस इज मिड ब्रेन, राइट, एंड थर्ड फोर्थ ये एक्चुअली अलग बताया, लेकिन ये पर ये सिक्स्थ है। सो थर्ड फोर्थ, फोर्थ यहाँ पे आएगी। तो ये एमएलएफ मिड लाइन में होता है, तो ये कोऑर्डिनेट करता है, इट कोऑर्डिनेट्स। सो अगेन यू सी, if you are turning your head, you know, these signals are sensed by the vestibular apparatus, वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई में जाएंगे, और आईज मूवमेंट भी होंगे साथ में। या फिर आई मूवमेंट पहले होगी तो नेक का मूवमेंट करना है वो इससे कोऑर्डिनेट करेगा, या फिर पहले नेक का मूवमेंट हो गया, आप गिर रहे हो और नेक का मूवमेंट पहले हो गया, तो आई का मूवमेंट साथ में करवाएगी। तो ये पूरा कोऑर्डिनेशन है विच इज डन बाय मीडियल लॉन्जिट्यूडिनल फेसिकुलर। सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज दैट यहाँ पे वेस्टिबुलर स्टिमुलेशन, ऑडिटरी स्टिमुलस, तो ये हारमोनियस मूवमेंट, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, हारमोनियस मूवमेंट। काफ़ी सारा इसके बारे में मैं आपको जब मैं स्पेशल सेंसेस की बात करूँगा, एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन। सो अगेन आई एम गोइंग टू आस्क, आई होप दिस पार्ट इज clear, because now I'm going to jump to the next part. Okay, so that is a go ahead. Good. So now a few slides, दो तीन slides है before this discussion finally ends. There is this track known as corticopontocerebellar pathway. अब ये कौन सी बला है, ये आपको देखना है, ये हम देखेंगे। सी, there are fibers which connect the cerebral cortex with the cerebellum. अभी तक हमने ऐसा कोई भी ट्रैक नहीं देखा जो कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सेरेबेलम से कनेक्ट करता है, राइट। सेरेब्रल कॉर्टेक्स को जो हम बोलते हैं कि लाइक लेमन पीपल से नानो मगज, बट इट इज लाइक सेरेबेलम। सो द कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू कनेक्ट विद सेरेबेलम, व्हाई इज दैट कनेक्शन नीड? पहले भी मैं बता चुका हूँ। व्हाई डू वी नीड दिस कनेक्शन इज दैट, सी, whenever you are going to perform anything, any action, so let's say you are going to hit the cricket ball, क्रिकेट में आपको शॉट एक खेलना है, तो आपके जो मोटर कॉर्टेक्स से, राइट, द इम्पल्सिस विल पास टू द सेरेबेलम साइमल्टेनियस अलॉन्ग विथ द कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक में जब इम्पल्सिस डिसेंड होंगे, when you are going to hit the ball, the impulses are going to descend from the cerebral cortex via the corticospinal tract to the anterior motor cells, horn cells in the spinal cord, so that you can lift your arm, you can assume a proper posture, वगैरह वगैरह. So as you do that, as the impulses are coming in that spinal cord, same copy, उसका पूरा एक जो सॉफ्ट कॉपी है वो पूरे जो इम्पल्स ट्रांसमिशन का, या फिर यू कैन से दैट पूरा जो उसका जो सॉफ्ट कॉपी है वो सेरेबेलम में भी जाएगा. सो व्हाट यू वांट टू डू, दैट सिग्नल, दैट कॉपी is also passed to cerebellum. Why? Because cerebellum will supervise whatever you are going to do, whatever you are wanting to do, rather आपको जो भी करना है वो बराबर होना चाहिए. So that supervision is created by God, that supervision should be done. So when you are actually moving your the impulses have come in the spinal cord, तो स्पाइनल कॉर्ड से जाके एंटीरियर मोटर, जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स और गामा मोटर न्यूरॉन्स से सब वो बेसिकली इट इज कॉजिंग द मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू लिफ्ट योर बैट, टू लिफ्ट योर, टू मूव अहेड, आपको पोस्चर एज्यूम करवाता है, फिर वो अपर लिम्ब को लिफ्ट करवाता है. तो वो पूरा जो मूवमेंट जब भी हो रहा है उसी वक्त जो प्रोप्रायोसेप्टर्स हमारे एक्टिव हो जाएंगे, राइट. प्रोप्रायोसेप्टर्स आर गोइंग टू सेंस द जॉइंट पोजीशन. Our body's proprioceptors, right, the muscle spindles and the Golgi tendon organ and all those joint proprioceptors, they are going to detect the joint angle. So they will
दे विल डिटेक्ट द जॉइंट एंगल, वो पूरा डोर्सल कॉलम पाथवे है, और वो जो हमारा स्पाइनोसेरेबेलर ट्रैक्ट्स है जो स्पाइनल कॉर्ड से सेरेबेलम जाएंगे, so these tracts are going to basically take this proprioceptive impulses, right? Chiefly the spinocerebellar tracts, not the dorsal column tract. Chiefly the spinocerebellar tract, they are going to carry the impulses to the cerebellum, and they are going to inform the cerebellum that this is currently happening. So cerebellum now has two copies, एक तो कि क्या करना है और क्या हो रहा है, ये दोनों कॉपी cerebellum के पास है. So both these copies are present with the cerebellum, and it detects that if there is a difference, then it will ensure corrective signals are sent. तो cerebellum से डायरेक्टली कोई डिसेंडिंग ट्रैक नहीं है, कोई भी ऐसा cerebello spinal ट्रैक नहीं है, बट cerebellum सिग्नल्स वापस मोटर कॉर्टेक्स को ही देंगी और मोटर कॉर्टेक्स से नीचे आएगा. So these things are happening, that the cerebellum is going to supervise. So it has both these copies. Now when we are talking about corticopontocerebellar pathway, तो जो पहली कॉपी है जो what is intended, what are we wanting to do, तो उसकी कॉपी ये corticopontocerebellar pathway से cerebellum में जाएगी. So cortico means cortex, ponto means pons, pons में वो वहाँ पे थोड़ा रिले करता है, और pons से फिर cerebellum. So this pathway has fibers from all the lobes of the cortex, frontal, temporal, parietal, occipital, ये सभी हिस्सों से इसको फाइबर्स मिलते हैं. So it has motors impulse, it is cerebellum is aware of all the impulses which are present in the entire cortex. Now the question you may ask is that frontal में तो कोई ऐसे मोटर impulses जनरेट नहीं हो रहे, टेम्पोरल में भी नहीं है, ऑक्सीपिटल में भी नहीं है, बट cerebellum is actually aware of everything which is happening. आप ये समझ लो, जब भी cerebellum का डिस्कशन आएगा तब आपको क्लियर होगा. So I hope this is okay. Now after origin from the cortex, the fiber descend through the corona radiata. अगेन कोरोना रेडिएटा आएगा और यहाँ पे इंटरनल कैप्सूल आएगा. मतलब जो भी कोरोना रेडिएटा फैन जैसा है वो वहाँ से इंटरनल कैप्सूल. अभी इंटरनल कैप्सूल में वो पोस्टीरियर लिम्ब में है या एंटीरियर लिम्ब में, वो देखना होगा, वो डायग्राम में है क्लियरली. राइट नाउ इवन आई एम नॉट अवेयर. सो इन द इंटरनल कैप्सूल these fibers will occupy a particular area, maybe that is genu or maybe that is anterior limb, that I'll have to refer. But see, this you have to remember what internal capsule is. Internal capsule descending fibers के लिए एक वो पूरा एक वो जो बैंड बैंड नी जैसा वो जो बनता है वहां पे वो पूरा डिसेंड हो रहा है. फिर वहां से जाके क्रस सेरेब्री इज द एंटीरियर पार्ट और द वेंट्रल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, राइट. यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ. आई थिंक आई हैव अ डायग्राम फॉर दैट. वेयर इज इट. You need to understand these things, otherwise lot of things may not be clear. So yeah, this is internal capsule. So यहाँ पे मे बी जेनु में है या एंटेलिम में कॉर्टिकोपोंटोसेरेबुलर पाथवे के फाइबर्स डिसेंड होते हैं. फिर आएगा मिड ब्रेन में क्रस, ये पूरा क्रस सेरेब्री है. दिस इज नोन एज क्रस सेरेब्री. सो दिस एंटायर इज नोन एज क्रस सेरेब्री. ये कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट है, और कॉर्टिकोपोंटोसेरेबुलर पाथवे जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो यहाँ पे मोस्टली इट इज प्रेजेंट इन द मीडियल पार्ट, राइट. फिर जाके वो पॉन्स में आएगा, यहाँ पे आएगा, डिसेंड होगा. तो यहाँ पे वेयर इज इट. साइनेप्स विद द पोंटाइन न्यूक्लियाई. देर आर लॉट्स ऑफ न्यूक्लिया इन द पॉन्स. पॉन्स में काफ़ी सारे न्यूक्लियाई होंगे, वहाँ पे वो साइनेप्स करेंगे. जो यहाँ पे रिले होता है, एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन्स, पोंटाइन न्यूक्लियाई से जो भी एक्सॉन्स निकलते हैं वो फिर जाएंगे मिडल सेरेबेलर पेडंकल. देर आर सुपीरियर, मिडल एंड इंफीरियर, 3 सेरेबेलर पेडंकल है, 3 पैर है. तो मिडल सेरेबेलर पेडंकल से वो मिडलाइन को क्रॉस करके वो अपोजिट सेरेबेलर कॉर्टेक्स तक जाएगी. So the right cerebral cortex is connected with the left cerebellum, and the left cerebral cortex is connected with the right cerebellum. So this pathway forms the anatomical basis for control of cerebellar activity of cerebral cortex and vice versa. This is why actually, like this pathway forms the anatomical basis. You can say that this is vice versa. दूसरे actually जो cerebellum से जो efferent impulses निकलते हैं वो दूसरे एरिया से जाते हैं. So just this is the main function. So this is लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स. यहाँ पे पॉन्स में ये पोंटाइन न्यूक्लिया में रिले करेगी,
and then it passes to this part, right? Similarly, this is the आई थिंक ये कॉर्टिको रेटिकुलर सेरेबेलर पाथवे। अभी आप हमको ये सिर्फ यही पाथवे देखना है, कॉर्टिको पॉन्टो सेरेबेलर पाथवे। तो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ये दोनों दूसरे अलग पाथ्स है, ये ओलाइवो सेरेबेलर पाथवे और रेटिकुलर सेरेबेलर। डोंट राइट नाउ forget this thing, this is not important. This is cortico ponto cerebellar pathway. So now even this is clear, and the final part, और कौन से ऐसे डिसेंडिंग फाइबर्स है जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए। आई मेंशन दिस, आई हैव एक्चुअली टॉक्ड अबाउट दिस, that those descending fibers which begin in the cortex and they end in the the brainstem areas. So corticorubral, corticotectal, corticonigral, cortico-olivary और corticoreticular. So जितने भी extra pyramidal tracts है, right, जैसे रूब्रोस्पाइनल, टेक्टोस्पाइनल, देन ओलाइवोस्पाइनल एंड रेटिकुलोस्पाइनल, ये सभी ट्रैक्स निकलते हैं ब्रेन स्टेम से, बट उनको एफरेंट इम्पल्सिस देता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सो आई थिंक दैट एंड्स दिस डिस्कशन ऑफ द डिसेंडिंग ट्रैक्ट। सो एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? So class, is that okay? I am going to begin the next topic on the lesions of spinal cord. Am I audible, everyone? Hello. Am I audible, everyone? Yeah. Okay, fine. So corticonuclear tract. So corticonuclear tract, I think Sheetal is asking that question. Corticonuclear tract is same as corticobulbar tract, और corticobulbar tract मतलब जो पिरामिडल ट्रैक्ट में जो हिस्सा क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई पे एंड होता है, those fibers of the pyramidal tract which are ending on the cranial nerve nuclei, right, for the supply of skeletal muscles of head and neck, right? So उनको corticonuclear बोलते हैं, corticonuclear fibers और corticobulbar fibers. So I hope that is pretty much clear. Now I'm going to end this presentation, and we are going to start the next interesting topic, and you will find it very interesting. ये बहुत ही interesting topic है, lesions of spinal cord, and I'll show you a video as well in let that right time come. I'll disperse the class after 15 minutes. We have just begun this thing. So okay, so lesions of spinal cord is already shared. Okay, now let's begin this thing. It's very interesting, और आपको इसमें what you need to do is, there is no new concept I am going to explain. See, the interesting part of the brain, you know what it is? There is just you have to remember lots of things. कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है जैसे CVS में था, RS में था। देयर आर कंसेप्ट्स, कैसे कोई चीज़ होती है। यहाँ पे कोई चीज़ कैसे होती है ये समझना नहीं है, ये चीज़ है और ये ऐसा होता है। मीनिंग दैट देयर इज लेस टू अंडरस्टैंड एंड मोर टू रिमेंबर। सो लेट्स से असेंडिंग ट्रैक क्या करता है, डिसेंडिंग ट्रैक क्या करता है, आप 1 2 3 बार पढ़ेंगे तो, और आप डिस्कस करोगे तो पता चल जाएगा कि what tract is located where and what function it is doing. एंड एग्जाम ओरिएंटेड जो टॉपिक्स है, जो चीज़ें हैं, उसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारा कवर किया है, बिकॉज यू नो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड बेटर। सो मेन पॉइंट्स डिसेंडिंग ट्रैक में से केवल पिरामिडल ट्रैक्ट्स थे जो क्वेश्चंस थे, और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक।
उसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक भी बहुत ही कम पूछा जाता है, और मैंने आपको बताई वो जो पूरा बॉक्स है वो आपको याद रखना है, और थोड़ी बहुत चीज़ें आप उसके साथ लिख लोगे तो आपको सब मार्क्स मिल जाते हैं। और पिरामिडल ट्रैक तो इम्पोर्टेंट पूरा ही है। तो बाकी सारी जो चीज़ें थी, मैं जो 120 स्लाइड में जो बाकी सारी चीज़ें थी, वो केवल वो कंसेप्ट समझने के लिए इम्पोर्टेंट थी। सो okay, I hope that will help you to at least like relieve your some anxiety. Lesions of spinal cord. So what does a lesion mean? Lesion means any damage, any breach or any break. कोई भी ब्रेक होता है या कोई भी डैमेज होता है किसी पार्ट में, तो उसको लीजन बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड में क्या होगा? तो स्पाइनल कॉर्ड में तीन तरह के लीजन होते हैं। ट्रांजैक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और द लीजन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स। कौन से? यू कैन हैव अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन, मतलब पूरा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो पूरा डैमेज हो चुका है, मतलब वो जो सर्वाइकल वाला हिस्सा और थोरेसिक वाले हिस्से में बीच में एक गैप आ गया और वो दोनों कम्युनिकेट नहीं कर रहे, दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग। सो इफ दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग एट ऑल, दैट इज अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन। व्हाट इज एन इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन? इफ देर इज सम कम्युनिकेशन, मे बी पोस्टीरियरली थोड़ा कम्युनिकेशन है, पोस्टीरियरली थोड़े ट्रैक्स है जो मतलब वो कंटिन्यूस है, और वो केवल जो गैप है या ब्रेक है वो आगे है, या फिर कोई भी तरह से। सो इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन में काफ़ी सारे टाइप्स है। एंड देन देर इज हेमिसेक्शन। नाउ दिस हेमिसेक्शन इज व्हाट यू आर गोइंग टू बी आस्क्ड. Hemisection is also known as Brown-Séquard syndrome, and it is very often asked. This is the most important thing which you have to remember in this topic. Brown-Séquard syndrome is asked as a 3 or 5 mark short note. I think it's asked as 5 marks. So now, spinal cord injury or SCI. So those of you who are aspiring to become spine surgeons, you have to pay close attention. You can become a spine surgeon after completing your orthopedics, MS Ortho. Okay, so this is the spinal cord, and these are the vertebral bones. ये है vertebral body और ये है spinous process और ये है spinal canal. सॉरी, vertebral foramina उसमें से है ये पूरा, ये spinal cord रन करता है. So if this particular vertebral body, right, if let's say there is some fracture due to some reason, if it goes behind, सामने से अगर एंटी वर्टिब्रल बॉडी के सामने से यदि कोई ऐसा फोर्स इम्पैक्ट करता है और ये पीछे चला जाएगा, तो ये पूरा जाएगा सीधा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर. सो सी, दिस इज द मैग्निफाइड व्यू. सो दिस इज अ कंप्लीट ट्रांजैक्शन, दिस इज अ कंप्लीट इंजरी, मीनिंग दैट वॉट एवर लेवल दिस हैज अकर्ड, इफ दिस इज, ये C8 है और ये T1 है, तो ये मतलब ये C8 और T1 के बीच में स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीटली डैमेज हो चुका है. एंड you can imagine that that person's life is almost finished, right? He will be alive, but then he won't have any sort of good functions. But then there are some treatment measures and everything else. So, but spinal cord injuries are very bad. They are very damaging and they are very debilitating. Spinal cord injuries, how do they occur? So most common cause is road traffic accident. रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में स्पेशली यू आर ड्राइविंग अ कार, राइट? बाइक वाले तो बचते ही नहीं है. इफ दे आर नॉट वेयरिंग a helmet, they won't, because their head injury will make like be very bad and they may die. But if you are driving a car and let's say you have not put on a seat belt, आपने कार में सीट बेल्ट नहीं पहना है, या मान लो कि यदि पहना भी हो, तो यदि कार को इम्पैक्ट होगा तो आपका बॉडी आगे मूव करेगा, और आगे मूव करेगा और डैशबोर्ड या जो भी स्टेयरिंग व्हील है उसके साथ इम्पैक्ट होगा. तो देर इज सम लाइक यू नो द अपर बॉडी और लोअर बॉडी के बीच में थोड़ा फोर्स और रेजिस्टेंस होगा. सो दैट विल कॉज योर डैमेज टू द this particular area, like the vertebral column. So that was complete injury in the previous slide, and this is now incomplete injury. Incomplete injury में क्या होगा कि you know spinal cord is only having some damage in some portion. So the same accident, road traffic accident में यदि ये थोड़ा बहुत ही अगर स्पाइनल कॉर्ड के वो वर्टिब्रल बॉडी इम्पिंच हो रहा है, उसको थोड़ा बहुत ही डैमेज हो रहा है, तो यू कैन सी दैट द पोस्टीरियरली यहाँ से तो सिग्नल्स ट्रांसमिशन हो रहा है. There is signal transmission in the posterior area, but the ventral area is damaged.
तो दिस इज इनकम्प्लीट इंजरी, ये इनकम्प्लीट है. सो नाउ okay, let me ask a question, it will be helpful for you to understand. This is vertebral body and this is the spinous process. So what part of the spinal cord, what part of spinal cord is in close relation to the vertebral body? So the option is okay. Is my voice audible? Am I audible, everyone? Rushi was telling that the voice is cracking. Okay, okay. So just let me optimize the setting. Hello. Yeah, hello. Is the voice audible now? Hello. Now is the voice audible, everyone? Okay, good. So now what part of spinal cord is in close relation to the vertebral body? So is this the ventral or dorsal? Who is saying dorsal? Jay, can you tell me why dorsal? ये मैं जानबूझ के क्वेश्चन पूछा है because I know many people make mistake here. This is very important in anatomy also. See, ये कहाँ गया? हाँ, this is vertebral body. Here will be the spinal cord. So vertebral body हमारी anteriorly होगी, right? तो स्पाइनल कॉर्ड का जो वेंट्रल हिस्सा है, वेंट्रल हिस्सा मीन्स द एंटीरियर फ्यूनिकुलस एंड द वेंट्रल ग्रे हॉर्न, they will be here in close relation, right? I hope Jay you are able to follow this. ये पता चलना चाहिए बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में अगर यही नहीं पता चला तो काफ़ी इश्यू होगा. सो दिस इज वर्टिब्रल बॉडी एंड दिस इज हियर द स्पाइनल कॉर्ड, उसका जो एंटीरियर हिस्सा है, एंटीरियर वाइट फ्यूनिकुलस एंड वेंट्रल ग्रे हॉर्न, दैट विल बी हियर. डॉर्सल ग्रे हॉर्न विल बी हियर इन रिलेशन टू द स्पाइनस प्रोसेस. और मैंने बताया था कि हमारा जो सेंसरी जो नर्व सप्लाई है और जो सेंसरी पूरा हिस्सा वो पीछे होता है और आगे वाले हिस्से से मोटर एरिया, मोटर जो है नर्व्स, मोटर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज देयर. सो सी दिस इज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, ये लेटरल व्यू है और आपको इसमें पता चलेगा. देखो दिस इज वर्टिब्रल बॉडी, ये थोड़ा एक साइड व्यू है बट साइड एंगल व्यू है. दिस इज इंटरवर्टिब्रल चेन, दिस इज डॉर्सल रूट गैंग्लियन और ये है हमारा वेंट्रल एंटीरियर फ्यूनिकुलस और वेंट्रल ग्रे हॉर्न वाला हिस्सा. सो नाउ इफ आई पुश दिस, अब यदि मैं इस वर्टिब्रल बॉडी को पुश करता हूँ तो इमीडिएटली द वेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इज डैमेज्ड और इट विल हैव सम प्रॉब्लम्स. Okay, please repeat this question's answer. Okay, so that is what I'm doing. Uh, just a second. What I was trying to tell you, do I have any other slide? See, this is the vertebral body. ये वर्टिब्रल बॉडी है और ये स्पाइनल कॉर्ड इसमें रन करेगा. सिमिलरली ये वर्टिब्रल बॉडी है, ये स्पाइनल कॉर्ड इसमें रन करता है. तो ये है, इफ आई पुश दिस देन दिस पर्टिकुलर एरिया वेंट्रल ग्रे हॉर्न, दिस इज सिचुएटेड एंटीरियरली, तो ये डैमेज होगा. यू हैव टू एक्चुअली लुक डिसेंडिंग ट्रैक्स के जो मेरे स्लाइड्स है उसमें आप जाके जो मैंने जो इमेजेस
उसमें है उसको रिफ़र करो, पता चल जाएगा कि जो मोटर वाला हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का वो एंटीरियरली होगा और जो सेंसरी वाला हिस्सा है वो पोस्टीरियरली होगा। आई होप इट्स क्लियर एवरीवन। आई होप दैट इज क्लियर एवरीवन। रिप्लाई मी। ओके, सो I shall move ahead. So after this, this is what incomplete spinal cord injury looks like. कंप्लीट में तो पूरा डैमेज है, ऊपर और नीचे कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बट इन इनकम्प्लीट इंजरी व्हाट हैपेंस इज, ये लेट्स से दिस एंटीरियरली, मतलब अगर वर्टिब्रल बॉडी पीछे की तरफ चली जाती है तो ये पूरा जो हिस्सा है ये मतलब ये डैमेज होने के चांसेस है। तो यू कैन सी दैट एंटीरियर राइट फिनिकुलस और जो वेंट्रल ग्रे हॉर्न है दोनों साइड पे वो पूरे डैमेज हो जाएंगे। तो इसको एंटीरियर इनकम्प्लीट एससीआई बोलते हैं। एससीआई मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, एंटीरियर इनकम्प्लीट एससीआई, ये नॉर्मल है। फिर अगर पीछे से यदि कोई, जैसे मान लो कि पीछे अगर बैक पे कोई भारी वजन पड़ जाएगा, कोई भारी वजन गिरेगा, या फिर पीछे से कोई लेट्स से देयर इज सम डैमेज, राइट, तो posterior funiculus and the dorsal gray horn on both sides they are damaged, the anterior motor part is spared, तो इसको posterior incomplete SCI बोलते हैं। ये हो गया। अभी आता है सेंट्रल। सेंट्रल मतलब क्या है कि डैमेज बीच में से हो रहा है। अभी ऐसी तो कैसी इंजरी है कि ये जो स्पाइनल कैनाल है, दिस इज स्पाइनल कैनाल जहाँ से सीएसएफ नीचे की तरफ जाता है। सो हमारे जो वेंट्रिकल से ब्रेन के अंदर, और जो पूरे जो स्पाइनल कैनाल जो है उसमें सीएसएफ होता है, इसके अंदर छोटा सा है बीच में वो गैप है। तो ये स्पाइनल कॉर्ड, ये जो स्पाइनल कैनाल है इट स्टार्ट्स टू डायलेट, वो अपने आप फूलना शुरू हो जाता है बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ सीएसएफ। देयर आर सम डिजीजेस which is known as syringomyelia, I suppose, if I recollect my medicine properly, syringomyelia, and there are some diseases wherein the spinal canal it dilates and it starts damaging this area। वो इतना बड़ा फूल जाता है, खास करके सर्वाइकल सेगमेंट्स में ये डायलिटेशन हो जाता है, एंड देयर इज लॉट ऑफ सीएसएफ। तो ये दिस इज सर्कम्फरेंशियल डैमेज टू दिस मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सो दिस इज सेंट्रल इनकम्प्लीट SCI। फिर आता है हमारा क्लासिकल ब्राउन सिकार्ड, इट इज ऑल्सो नोन एज हेमिसेक्शन। हेमिसेक्शन मतलब कि एक तरफ का स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया, इधर राइट और लेफ्ट। तो पूरा जो है हमारा एंटीरियर फिनिकुलस, लेटरल फिनिकुलस, पोस्टीरियर फिनिकुलस और वेंट्रल ग्रे हॉर्न, इंटरमीडिएट ग्रे हॉर्न और डॉर्सल ग्रे हॉर्न, ये सभी डैमेज हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हेमिसेक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और द ब्राउन सिकार्ड सिंड्रोम। So this is regarding the different types of incomplete injury. This is an MRI scan, और MRI के अंदर ये T1 T2 वेटेड ऐसा होता है इसमें कि एक टाइप का जो उन लोग सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो उसमें केवल सॉफ्ट टिश्यू स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से दिखता है, और दूसरे टाइप की इमेज में हमको ये वर्टिब्रल बोन्स जो अच्छे से दिखते हैं। तो एक ही पेशेंट का MRI है, एक ही टाइम पे किया है। ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम में आप देख सकते हो कि वर्टिब्रल बॉडी टूटा हुआ है और वो पीछे की तरफ जा रहा है, ये वाला। और वो जो दैट इज इम्पिंजिंग, वो इम्पिंज मतलब वो उसको उसके ऊपर वो ये दबाण आप है स्पाइनल कॉर्ड ने, वो पुश कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये वाले हिस्से पे आप देख सकते हो कि स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे ये डैमेज हो रहा है। सो दिस इज द MRI पिक्चर। So what we are going to do is we are going to study what happens if there is physiologically what happens। हमने फिजियोलॉजिकली पूरा देख लिया कि असेंडिंग ट्रैक क्या करता है, डिसेंडिंग ट्रैक क्या करता है, व्हाट इट डज। नाउ वी हैव टू स्टडी what happens if there is damage to the spinal cord। So this is somewhat related to medicine but it's a pure physiology topic। वी जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट द नॉर्मल फंक्शंस। मतलब अगर पूरा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया तो मतलब कोई भी असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक सप्लाई वो इम्पल्सेस रन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तो ये हमको स्टडी करना है। सो इन कंप्लीट ट्रांजेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड द कॉमन कॉजेज आर गन शॉट इंजरी, राइट, कोई गोली वागे बंदूक नहीं, तो इट मे हैपन दैट पीछे से आगे से यदि लाइक द पर्सन इज हैविंग एनी गन शॉट इंजरी,
तो it may happen that if it is a sharp bullet and if it is like very close और एंटीरियरली अगर मान लो कि वो एब्डोमेन से होके स्पाइनल कॉर्ड तक वर्टिब्रल कॉलम को भी वो करके स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जा सकती है. सो दैट कैन बी हैपन दैट द एंटायर स्पाइनल कॉर्ड इन दैट रीजन इन दैट सेगमेंट इट इज डैमेज्ड और अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में कोई कम्युनिकेशन नहीं है. या फिर डिसलोकेशन ऑफ स्पाइन, मतलब कई बार एल्डरली पीपल में लाइक यू नो एल्डरली पीपल उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उनके उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होती है, देर इज़ लेस कैल्शियम. सो वो गिर जाते हैं तो वो पूरा जो स्पाइन का हिस्से पे अगर वज़न आ जाता है तो वो वर्टिब्रल बॉडी है वो टूट जाती है और वो पीछे की तरफ चली जाती है. या इट मे हैपन दैट यू नो द एनाटॉमी में आएगा कि दो वर्टिब्रल बॉडी के बीच में एक न्यूक्लियस पल्पोजस होता है, एन्युलर एन्युलस, वो पूरा एक सॉफ्ट टिश्यू होता है. वो सॉफ्ट टिश्यू अगर वो उस पर प्रेशर ज़्यादा आ जाता है तो उसमें उससे रेडिकुलोपैथी होता है और फिर सायटिका वगैरह सब होता है. दैट विल कम हैव अ बेटर आइडिया इन एनाटॉमी. सो डिसलोकेशन ऑफ स्पाइन और फिर ऑक्लूजन ऑफ ब्लड वेसल. सो जो हमारी एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी है, पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, सब आर्टरीज होती है. तो यदि उसमें वहाँ पे कोई ऑक्लूजन आ जाता है तो वर्टिब्रल बॉडी का जो भी है पूरा सप्लाई और इवन जो स्पाइनल आर्टरी है हमारी एंटीरियर स्पाइनल पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी सब है, तो उसका जो सप्लाई ब्लॉक हो जाएगा तो पूरे स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड मिलना बंद हो जाएगा, तो दैट पार्ट विल बिकम डेड. So the most common cause is gunshot injury, right? Or you can say that injury because of accidents. So common site of involvement is mid thoracic level. Mid thoracic मतलब T5, T6, T7 वाला एरिया जो है वो commonly damage होता है because in gunshot injury that is how things are happening. Why it is so? I don't have a proper answer, but mid thoracic level is the common site. So complete spinal injury, it is the most severe form. ऑल सेंसेशन एंड मोटर फंक्शन, अभी ये तो वेरी क्लियर है कि सभी सेंसरी और मोटर फंक्शन यू विल लूज. एंड व्हाट डेफिसिट इज दैट दैट डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ इंजरी. यदि यहाँ पे इंजरी हो इन द लंबर रीजन तो पैर वाला हिस्सा काम नहीं करेगा. यहाँ पे थोरेसिक वाले हिस्से में अपर लिम का थोड़ा बहुत अफेक्ट होगा और सर्वाइकल वाले हिस्से में बहुत ही ज़्यादा डैमेज होगा. यही हमको देखना है कि कौन से लेवल पे क्या डैमेज हो रहा है. So tetraplegia occurs with this injury. Paraplegia occurs with this. अब मैं आपको ये सब बताता हूँ. Okay, let me ask, is it a time for break? What do you want to do? Because voice cut થાય છે. हाँ, not proper voice. Okay, class, what I'm going to do, I'll just give a break. I'll disperse the class. I shall break આપું છું અત્યારે. Class for 10 minutes. We will try to reconnect after that.